Sir, at the outset of my delivery on presidential address, I would like to pay my profound respect to our Honorable President, who has made his gracious presence at the Central Hall on 20th June. Actually, the Constitution of India provides for the address by President of India, and the genesis of this kind of address lies in the year 1921, while we were under central legislature, and by the Act of Government of India 1919, the practice was set in motion, and now after independence, the practice and system has been bequeathed upon us. That is why it's a time-honored custom of parliamentary democracy of India that we are having this kind of sovereign address to the people. Sir, you are well aware that the contents of the presidential address is prepared, drafted by the ruling party. Because in India, President is envisaged as a formal or constitutional head of the executive, like the English Parliament, where simply the hyphen joins and the buckle fastens the executive part of the state to the legislative part. So, as a corollary of which we can say that in our parliamentary democracy, the document of presidential address has been the expression of intention of this government and the policy and program they want to pursue. So it's a great opportunity for me to participate in the debate. We are all hearing with rapt attention with the speech delivered by Honorable Mr. Sarangi ji and our beloved Sister Gavit ji. देखिए, बात ऐसा है कि आप किसी को स्तुति करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। प्रधानमंत्री आपका नहीं, प्रधानमंत्री हमारा भी है, हम सबका प्रधानमंत्री है। लेकिन क्योंकि आपके पार्टी के लीडर है, स्तुति करना ही चाहिए। लेकिन स्तुति करते करते हद की बाहर होना बेमानी लगता है, ये जरूर मैं कहूंगा। आप बहुत ज्ञानी है सारंगी जी, बहुत ज्ञानी हैं आप। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से, खासकर उनका नाम नरेंद्र मोदी है, इसलिए आप नरेंद्र दत्त को आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मिलावट करें, ये गलत है, ये जरूर मैं कहूंगा। इसमें बुरा मत मानिए। मैं भी प्रधानमंत्री जी को सम्मान करता हूं, जरूर सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने ये देश की प्रधानमंत्री बने हैं एक बार नहीं दो दफे, तो इसमें तो सम्मान करना ही चाहिए। हम शुरुआती तौर पे का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन यू शुड नॉट कंपेयर बिटवीन मॉन्क एंड मॉन्स्टर। नो, ये अवमानना है। नरेंद्र
मजबूर करते हैं, हम लोग बोलने नहीं चाहते, हमने बोलने नहीं चाहते, आप लोग मजबूर कर रहे हैं, आप लोग बोलने में मजबूर कर रहे हैं। बता रहा हूं इन द ईयर 1893, जस्ट लिसन टू मी, Swami Vivekananda visited Chicago in the USA to join रिकॉर्ड देखने के बाद जो असंसदीय शब्द होगा उसको डिलीट कर दिया जाए। आप कृपया बैठ जाइए। रिकॉर्ड रिकॉर्ड देख लिया जाएगा। आप ही बैठिए, आपके नेता खड़े हुए हैं, आप बैठ जाइए, आपके नेता खड़े, आप बैठ जाइए, आप प्लीज सिट डाउन, आपके नेता बोल रहे हैं, प्लीज। कोई भी आपत्तिजनक शब्द होगा उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। आप कृपया करके बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अधीर रंजन, प्लीज। In the city of Chicago, USA, Swami Vivekananda had addressed one religious congregation in Chicago, where he said, I quote, that chastity, purity, and sanity, honesty are not the exclusive possession of any church in the world. If anybody thinks of its own survival and destruction of all, I pity on them and point out to them that soon after the banner of every religion will be written, health, not fight. Assimilation and not destruction. Peace and harmony, not dissension. This was the message given by no other than Swami Vivekananda ji. What our Modi ji has conveyed the message to the world. During his address to the Indian community in Shanghai in 2015, PM Modi had said, earlier you felt ashamed of being born Indian. Now you feel proud to represent the country. Do you agree with it? Do you agree? Or do you agree? Oh, that is very good. So that means Atal Bihari Vajpayee ji, Mohan Bhagwat ji, Savarkar ji, Hedgewar ji, Munshi ji, all were not proud of being Indian. Only you are proud of being Indian. Only Modi ji is being proud of being Indian. Do you agree? He is the only Indian. भाई साहब, AG 2G करते करते तो हम लोग यहाँ बैठ गया, तो आपत्ति नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बात सुनिए। अच्छा, मोदी जी की 5 साल, अभी आ गया 1 साल 6 साल, तो 2G में कोयला घोटाले में किसी को पकड़ के रखा, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को जेल की सड़कों के पीछे रख पाए आप लोग? रखो ना। हम चाहते हैं ये कानून को चूस दुरुस्त करके जो लोगों को चोर बना के आप लोग सत्ता में आए हैं, वो लोग हाउस में क्यों बैठे, क्यों जेल की सड़कों के पीछे नहीं है, क्यों राहुल जी बाहर है, क्यों मैडम सोनिया गांधी बाहर है, ये मैं पूछना चाहता हूं। बोलो। अरे वो हिम्मत हमारे है, यहाँ प्रधानमंत्री जी है, यहाँ गृह मंत्री, भेजो ना जेल में। देखो रामकृपाल जी, इस बार प्रचार में आप लोग कभी यही नहीं कहा कि 2G घोटाला और कोयला घोटाला, वो बाजार में अभी प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा।
इस बार नया प्रोडक्ट लाए हैं आप लोग, क्योंकि आप बड़ा सेल्समैन हैं। मानता हूं कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत बड़ा सेल्समैन है और होना भी चाहिए। मैं उनको सराहना करता हूं कि हमारा प्रोडक्ट सेल्स करने में नाकामयाब हुआ, इसलिए हारा। आपने अपना प्रोडक्ट को सेल्स करने में कामयाब हुई, इसलिए जीता, तो हो गया। अरे नहीं, हम तो स्वीकार करते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट, प्लीज एड्रेस द चेयर। मैंने अपना प्रोडक्ट, हमारे पार्टी अपना प्रोडक्ट बेचने में नाकामयाब रही, इसलिए हम लोग हारा और इधर बैठ गया। उन लोगों ने उनका प्रोडक्ट अच्छा हो या बुरा हो, भेजाल हो या नहीं, बेचने में कामयाब हुई, सत्ता पे आ गई, तो हैरान क्या है। हम तो मानते हुए ही आकर हमारा बात रखना चाहते हैं, कोई खराबी नहीं, ठीक है। सिर्फ मैंने ये कहना चाहता हूं, तो दिस प्रेसिडेंशियल बजट इज रिप्लीट विथ insipid hyperbole, monotonous rigmarole and highfalutin rhetorical exercises without any substance. That is why we have made a number of amendments. We have proposed a number of amendments to the presidential address. It's a motion of thanks. Before going into details, sir, first of all, I must say that Congress party does not want to criticize Honorable Rashtrapati ji. We do not want to castigate Honorable Rashtrapati ji. Rather, we want to criticize and we want to lambast the government for its failure and indifference and apathy on various issues. इतने सांसद हैं, सारंगी साहब, बहिन जी, इतने बात रखे हैं। कभी हिंदुस्तान की सूखे की चपेट में जो आधा हिंदुस्तान अभी खेल रहे हैं, आपको इसके बारे में चिंता नहीं है? किसी ने एक बात नहीं उठाया कि सारे हिंदुस्तान में आधा से ज्यादा हिस्सा सूखा की चपेट में आ चुके हैं। देखिए बिहार में एन्केफेलाइटिस के कहर थामने का नाम नहीं दे रहे हैं, नरसंहार हो रहे हैं, 150 से ज्यादा बच्चे की मौत हो चुके हैं। अभी क्या होगा पता नहीं। ये चमकी भूखार में ताही ताही मच गए हैं, त्रास भी मच गए हैं। आप लोगों को कोई फिक्र है? नहीं है, क्योंकि आप सबको जानकारी है। पानी ला तो, क्योंकि आप सब लोगों को, जो भी यहाँ एमपी है, ज्यादातर एमपी, आप सबको ये भरोसा है मैं कुछ करने वाला नहीं, जो करेगा हमारा मोदी जी कर देगा। हमें कौन पार करेगा? मोदी बाबा पार करेगा, यही आपका नारा है। तो इसलिए पार करेगा, पार कर दिया, फिर आप उनकी भरोसे में रहेगा। इसीलिए आम लोगों की जो कठिनाइयां हैं, आम लोगों की जो तकलीफ है, इसके बारे में आप लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं है। किंतु आप सबको एक परसेप्शन है, दिमाग में ये फैला हुआ है कि मोदी बाबा पार करेगा, इसलिए मोदी बाबा को पूजा करो, सब उलझन से हम निकल जाएगा। तो इसलिए आम लोगों की पूजा नहीं करते, बल्कि यहां मोदी बाबा को पूजा किया जाता है। यही तो है ना। नहीं तो आज जो भाषण हुआ है, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से जो भाषण हुआ है, आप कहिए महोदय जी, इसमें प्रेसिडेंशियल एड्रेस की जिक्र कितने बार, कई बार हो चुके हैं। हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग संख्या में नगण्य हो सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम लोगों के लिए लड़ना हम बंद कर दें। नहीं, कोई ऐसा गलतफहमी ना करे। कभी इंदिरा गांधी कहते थे, एक लोगों की ऊंचाई जितनी भी हो, अगर खाना पीना ठीक से ना हो, ज्यादा मेहनत की हो, सेहत के ऊपर नजर ना दिया हो, तो उसमें थोड़ा सूखापन, थोड़ा ढीलापन लगता है।
लेकिन किसी हालत में भी कोई इंसान को अपना ऊंचाई नहीं घाटते। मोदी जी की ऊंचाई जितना हो, अगर खाना पीना कम हो, मेहनत ज्यादा हो, तो उनका थोड़ा दुगली पतली हो सकता, लेकिन ऊंचाई कभी नहीं गिरेगा। ऐसा कांग्रेस पार्टी की ऊंचाई इस तरह ही है कि हमारा गिरता नहीं, चाहे हमें कुछ दुगला पतला हो सकते, ऐसा बात नहीं। हमारा 52 मेंबर्स है, इसका मतलब दुगला पतला तो हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं ऊंचाई हमारा कभी गिरने वाला है नहीं है। इसलिए हम आम लोगों की बात बोलने वाला है और बोलते रहेंगे। यस, ये पैरा 7 में प्रेसिडेंशियल एड्रेस पैरा 7 में सर, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज मेंशन्ड दैट आई कोट, by doing so the people of the country have given a mandate for continuing uninterrupted and at an accelerated pace the journey of development which started in 2014. Sir, here हमारा objection है. I beg to differ with this kind of contention because you know that India attained independence on 15th August 1947. That day, the visionary leader Jawaharlal Nehru delivered his historic address. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. The moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when the age ends and the soul of a nation long suppressed finds utterance. आजादी की बाद शुरू हुई हिंदुस्तान की तरक्की की इतिहास। अगर ये कोई ना माने, अगर इसको किसी ने सम्मान ना दे, तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के साथ ये एक तरह की धोखा है। बोल रहे हैं, चिंता मत करो। तो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ कांग्रेस पार्टी टू द प्रेसिडेंशियल एड्रेस which has been drafted by the ruling regime, that it is a deliberate distortion of history, and it is a partisan manipulation of facts also. Sir, for your convenience and for the convenience of the House, the first 5-year plan 1951 to 56 had a modest outlay of rupees 2069 crores, which moved up to 36,44,718 crores during the 11 period, that is 2007 to 2012. Huge enhancement of this outlay itself is an indication of the progress, growth and development in Indian economy. आपको समझ में आया? 2069 करोड़ इजाफा होते 36 लाख करोड़ पहुंच चुके हैं 11th 5-year प्लान में। तो ये का कुछ काम नहीं हुआ। फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी 1901 to 1951, the GDP growth of Indian economy was less than 1% per annum. Less than 1% during the period of 1901 to 1951. At the end of 11th 5-year plan, that means 2007 to 2012, India's coal production was 612 million tons, steel production 91.5 million tons, cement production 270.3 million tons, electricity generation stood at 1048.7 billion tons. We achieved more than
7.5% GDP growth. That means from -1% growth, we have drawn the country to the height of 7.5% GDP growth. Mind it, Honorable Prime Minister also here. Sir, we had a compact period of 10 years from 2003 to 2012, where India achieved more than 7.6% GDP. On an average for 10 years, can you imagine? On an average of 10 years, the compact period from 2003 to 2012, 7.6% GDP growth on an average for 10 years. And in 2009-10 GDP growth was 8.6%. In spite of the fact that world had witnessed an economic recession, the global meltdown that time occurred across the shore of Atlantic, the cascading effect we have had in our country also, that economic tsunami had washed across the world. In spite of the fact, we have emerged out unscathed from the economic tsunami which was occurred in USA, because USA was the epicenter of that economic tsunami. Current account deficit was 2.8% in 2009-10, while wholesale price index inflation was 3.8% and IIP growth was 5.3%. During this period, there was a remarkable qualitative change in Indian economy. Sectoral in gross value added in terms of percentage of important sectors has substantially changed. Agriculture contributed near 50% of our GDP earlier. The contribution of service sector 2011-12 was 48.2%. Industry comprised 32.9%. And agriculture, as I mentioned, came down to 18.9%. Within a couple of days, new finance minister is going to present his budget, and you will find astronomical figures in the budgetary document in regard of revenue received, revenue expenditure, revenue deficit, in revenue account, etc. Sir, for your convenience, madam, for your convenience, I would like to draw your attention that the first budget presented by the Union Finance Minister, Sri Shanmughan Chetty, revenue received was 171 crores, 1947 to 48, 171 crores only. Revenue expenditure was only 197 crores, and revenue deposit was only 26 crores. And in the last full budget of UPA 2, 2013-14, presented by another illustrious son of Tamil Nadu, C. Chidambaram, the revenue received was 10,56,331 crores. Revenue expenditure was 14,36,169 crores. And revenue deficit was 3,79,838 crores. What enormous change, and surely this change took place before 2014. That is why we should not distort the history, because past is our history, future is a mystery, present, cash in hand, spent wisely. In 1969, 14 major scheduled commercial banks operating in India, comprising nearly 90% of the banking business. In 1969, the then Prime Minister Indira Gandhi decided to nationalize 14 scheduled commercial banks. There had been phenomenal changes in the banking business ever since. तो सारंगी साहब को कुछ नहीं दिखा देता तो क्या करें? Sir, Indian tradition begins with inquiry, quest, questions, doubts, disagreement, accommodation, acceptance, etc. Because these are the hallmarks of our pluralism. Plurality is the hallmark of our country.
India, we can claim as a civilization, is an unending celebration of human plurality. Plurality accommodates differences, and differences embody and enact the dissension. On this concept, we have been growing the country for decades together. Congress party has been contributing to the growth of our country. Now, if one fine morning somebody says that nothing has been taken place in India, so we have came here and started developing, it is nothing but a travesty of truth. Within 5 years. And I would urge upon Honorable Minister and the government that in future you should not be accused as a government who were indulging in the travesty of truth. Who has initiated White Revolution? Blue Revolution. Now you are talking about Blue Revolution. It was initiated by Congress party during 7th five-year plan. Yes. During 7th five-year plan. Just go to the record. That's it. These people are Now you are trying to earn credit for the Blue Revolution. Why? Because it's a government that may be called compliment addicted government. Earning compliment by manipulating the facts. So it is a compliment addiction by manipulation. कुछ करके आप सराहना अदा करो, कोई हर्ज नहीं. Without even letting a drop of blood, Congress party had been initiating a slew of measures, slew of social revolution, rather I say, a slew of social revolution for the growth of my country, for the welfare of the people of my country. Insofar as Green Revolution is concerned, who had initiated Green Revolution? Green Revolution to end India's food grain import dependency was started in 1965 with the help of Indian geneticists. You are well aware of the name of Swaminathan ji? You are well aware that the high-yielding seed we have brought from Mexico in order to grow and in order to achieve the self-dependency on the food grain production of our country. We had exhausted all our resources to get rid of the PL 480 imposed upon us by the rich nation America. Swaminathan, sorry. M.S. Swaminathan, known as the father of Green Revolution by Prime Minister Lal Bahadur Shastri and was taken forward by Prime Minister Indira Gandhi from 1966. Green Revolution resulted in record grain output from 50 million ton in 1947. When our country attained independence, the capacity of our food production was 50 million ton. It had increased, it was increased to the tune of 131 million tons in 1978-79 and 264.38 million tons in 2013 and 14. Have we not done anything for the country? In 1970, Operation Flood was launched with the help of Dr. Kurian. Both of our Prime Minister and our Home Minister both are well informed, well acquainted with the White Revolution because the epicenter of the White Revolution was in Gujarat. See, you know that the name of Amul, this is called a Anand Milk Union Limited.
Prime Minister perhaps had taught the cooperative federalism from Dr. Kurian, because most of the time he used to refer cooperative federalism. But this concept of cooperative was generated, had a great origin in Gujarat. From being 50th in the world in terms of milk production, India became the largest producers of milk in just a couple of decades, followed by America, China, Pakistan, Brazil. Operation Flood was also established a pattern of success for other countries to follow. By 1975, all imports of milk and milk products stopped. पहले विदेश से हमें मिल्क पाउडर लाने पड़ता, बचपन में हम भी विदेश से लाया गया मिल्क पाउडर को खाते थे स्कूल में, लेकिन अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए हिंदुस्तान। किसने किया ये व्हाइट रेवोल्यूशन? किसने किया? Who was the pioneer of white revolution? It was Congress. Who was the pioneer of a green revolution? It was Congress. Who was the pioneer of blue revolution? It was Congress. So Congress is the soul of the nation. You will lose your entire identity without Congress. Congress is very much synonymous with India. Congress is an identity of India. Don't take it otherwise. Yeah, it does. Sir, there is an adage in America that before election may one be Democrat or Republican, but after election we are all American. Can, taking the cue, we can say that before election may one be BJP, SP, BSP, Trinamool, BJD and Congress, but after election we are all striving for state, for country's progress, for a nation's progress. We should adopt the slogan that after election we should all strive for our nation's progress. Sir, dairy is one of the biggest industries in India, with over 10 million dairy farmers in around 96,000 cooperatives. And I think that the highest number of cooperatives across the nation are from Gujarat, Maharashtra and other states also. In my state it has been failed miserably. The dams in India. Since independence, India has made tremendous progress in building dams and water reservoirs there. 1947, there are fewer than 30 dams, 300 dams in India. By the year 2000, the number had grown to over 4,000. More than half of them built between 1971 and 1989. India ranks third in the world in dam building after US and China. Are you not proud of it? सारंगी जी कहते थे कि आप मोदी जी की जीत में खुशी नहीं है। अरे मोदी जी तो हिंदुस्तान की एक इंसान है, जरूर हम खुशी हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरक्की में आप खुशी नहीं है। आप तो मोदी जी की तरक्की में खुशी रहते और हम हिंदुस्तान की तरक्की में खुशी रहते, क्योंकि व्यक्ति नहीं हमारे लिए देश आगे है, पार्टी नहीं हमारे लिए हिंदुस्तान आगे है। ये भाखड़ा नंगल डैम किसने बनाया सरंगी भाई? सरदार सरोवर डैम किसने बनाया गुजरात में? हीराकुद डैम किसने बनाया? नागार्जुन सागर डैम, इदुक्की डैम किसने बनाया? ये बड़ा लंबा कतार है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कांग्रेस बनाया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन कांग्रेस बना, प्रधान साहब है यहाँ। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रधान साहब कांग्रेस बनाया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रधान साहब कांग्रेस बनाया। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कांग्रेस बनाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कांग्रेस बनाया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कांग्रेस बनाया। May I ask one question to my honorable Prime Minister? How many PSU you have established as opposed to shutting them down? Now we are the member of the nuclear club of the world. We are also the member of the nuclear club, for which sometimes Prime Minister Narendra Modi ji is boasting of. I think he has every right to boast of, because he is the
Prime Minister of our country. Prime Minister Jawaharlal Nehru and Homi Bhabha are known to be architects of nuclear research in India. In 1948, as Prime Minister Nehru wrote to Defence Minister Sardar Vallabh Singh, the future belongs to those who produce atomic energy that is going to be the chief national power of future. It was Nehru who encouraged Homi Jahangir Bhabha, known as the father of India's nuclear program, to think big. Some of the major milestones in nuclear research: India establishes the Reactor Research Center under DAE in 1971. It is later renamed Indira Gandhi Center for Atomic Research. हम लोग भी परमाणु विस्फोरण घटाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी घटाई। यही तो परंपरा है ना। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना उन्हीं का दिमाग से पहले निकाले, तो हम लोग तो उनकी सराहना करते हैं। लेकिन आप देखिए, इतना बड़ा जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस आपने लिखे हैं, एक बार कम से कम नेहरू जी का नाम लिया करते, अच्छा लगता हम लोग को भी। अब छोटा नहीं होते, एक बार नाम लिया करते थे। तो हिंदुस्तान को आप जिस रूप से चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कैसे हमारा विश्वास होगा? आप हमारा नेता को नाम नहीं लेते हैं, हम हमें निकालने जाते हैं। तो इसमें आपको सोचना चाहिए। देखिए, हाँ, स्माइलिंग बुद्धा 1974 पोखरान एक्सप्लोजन हुई थी, बाद में इंदिरा गांधी, अंडर द लीडरशिप इंदिरा गांधी, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हें शक्ति विस्फोरण किया है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है, सबके लिए गर्व की बात है। बाय द एंड ऑफ 2013 इंडिया हैज 68 न्यूक्लियर रिएक्टर। पहले हम लोग को अछूत माना जाता, दुनिया में न्यूक्लियर कंट्री हमें अछूत मानता। 2008 साल में इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट वाज साइन, पेविंग द वे फॉर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। सारंगी भाई, आप लोग विरोधिता किया था, आप लोग विरोध किया था, फिर भी पास करा लिया। लेकिन हम उस तरह की विरोध नहीं करते। हमने उस दिन ये पास कराया, इसलिए आज दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जहां जाए वहां उनका स्वागत हो, वहां उनका सम्मान हो। हम चाहते हैं, तहे दिल से चाहते हैं। मिसाइल डेवलपमेंट की बात आए, आप कहते हैं ना, पाकिस्तान अगर ज्यादा इधर उधर करेगी तो पाकिस्तान को हम नास्ता नाबूद कर देंगे। किसकी भरोसे? मिसाइल के भरोसे। वो मिसाइल किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। 1981 DRDO was formed. DRDO was formed in 1958 under the aegis of then PM Jawaharlal Nehru with a vision to make India prosperous by establishing world-class science and technology base and provide our defense services a decisive edge. Dr. APJ Abdul Kalam, along with others at ISRO Trivandrum, made a plea to then Prime Minister Indira Gandhi 1972 to continue to retain direct leadership of the space program and get India's historic missile mission started. APJ Abdul Kalam is called the Missile Man of India for his outstanding contribution to the field. 1989, Agni 1, surface to surface range missile. 1999, Agni 2. 2003, 2001, BrahMos. 2006, PAD. 2013, Nirbhay. 2019, ASAT. 2019, EMISAT. क्या सैटेलाइट है? ये आपको समझ में नहीं आएगा, सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है। 2010 में 2010 अग्नि 3, 2012 अग्नि 5। अच्छा मोदी जी, मैं मोदी जी को पूछता हूं और सबको पूछता हूं, अगर कांग्रेस की जमाने में इस तरीके की स्पेस टेक्नोलॉजी का काम अगर नहीं होता तो आज मोदी जी चंद्रयान की सोच कर सकते? बोलिए। तो मतलब क्या है? कांग्रेस बनाया, उसके ऊपर आप बना रहे हो। मोदी जी चाहता है कि 2047 तक रहे, वो ठीक है, आप रह सकते, उसके बाद तो कोई बनाएगा नहीं। 2047 साल तक हम छुट्टी दी रहो,
उसके बाद तो कोई नया आएगा। तो आज 2047 साल तक आपने जो काम करेगा उसी के ऊपर किसी दूसरे ने करेगा। तो यही तो हमारा सिलसिला है। तो इसमें ये वार ऑफ क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं आप? ये सराहना की वार क्यों करते हैं आप? यही तो मुझे बुरा लगता है। ये एजुकेशन की बात करें आप, एजुकेशन में देखिए, एट इंडिपेंडेंट इंडिया लिटरेसी रेट वाज ए पॉलिटी 12.2%, which increased to 71.96% by 2013-14। हाँ, पार्लियामेंट एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट दिया, उसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा देन है, मानता हूं। मैं उस समय पार्लियामेंट में थे ना। मिड डे मील हैज बीन स्टार्टेड इन स्कूल सिंस 1995। There were only 27 universities in 1950 and 51, which has been increased to 821 in 2013-14। तो हम लोग कुछ नहीं किया, आप बताओ। टेलीकॉम रेवोल्यूशन हो तो जानते हैं, ये हिंदुस्तान में आज टेलीकॉम रेवोल्यूशन की चलते हम आज दुनिया में हम आज किसी खतरे से मुकाबला करने में सक्षम होती है। जब टेलीकॉम की बात आते तो राहुल जी की बात आ जाती, राजीव गांधी जी की बात आ जाती। बस एक ही है, उनका पिता है, ज्यादा तो गलती नहीं किया ना, उनका पिता ही तो है। राहुल जी के इसके ऊपर बड़ा दिलचस्पी है, इसलिए कह रहा हूं। तो आज फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने वाला है, मतलब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। पहले स्टीम के जरिए फर्स्ट रेवोल्यूशन, साइंस के जरिए सेकेंड रेवोल्यूशन, डिजिटल के लिए थर्ड रेवोल्यूशन, अभी टेक्नोलॉजी के लिए फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर राजीव जी नहीं होते तो इस तरीके के हम रेवोल्यूशन करना पाते? आप बोलो। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आज की जो जमाना आ रहे हैं, मैं तो प्रधानमंत्री जी को यह सजेस्ट करूंगा कि 5G की जमाना आ रहे हैं, हमारे नौजवानों को 5G की ट्रेनिंग आप दो। 5G की ट्रेनिंग अगर उन लोग को ना मिले तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यूथ जनरेशन है, वो काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं उनको सलाह सजेस्ट करना चाहता हूं कि 5G की जमाना आने वाला है, अब अभी से स्किल को उस तरीके की ले चलना चाहिए जैसे कि 5G की सुविधा हिंदुस्तान को मुहैया कराने में हम सक्षम रहे। तो ये सारे टेलीकॉम रेवोल्यूशन किसने किया? राजीव गांधी, जिनको कहा जाता कि डिजिटल मैन ऑफ इंडिया, कंप्यूटर मैन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के हम लोग हमारे देश के लिए काम किए हैं, और आप लोगों को अच्छा नहीं लगता तो ये हमारे लिए बहुत चिंता के विषय है। देखिए, मनरेगा किसने चालू किया? कांग्रेस। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किसने चालू किया? कांग्रेस। राइट टू एजुकेशन किसने चालू किया? कांग्रेस। लैंड एक्विजिशन एक्ट किसने चालू किया? कांग्रेस। फूड सिक्योरिटी एक्ट, मैं मैडम सोनिया गांधी जी को सराहना करूंगा। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसकी जिक्र कर रहे थे मेरा बहन जी, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट उस समय मैडम की नेतृत्व में हुई थी। उन्होंने हमारा सरकार को राइट टू एजुकेशन, हमारे सरकार को उन्हें नसीहत दिया कि इस तरीके की कानून लाना चाहिए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट किसकी जमाने में? कांग्रेस की जमाने में। राइट टू इन्फॉर्मेशन बोल दें मैडम। लोकपाल एक्ट, एग्रीकल्चर डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम, वो भी कांग्रेस की जमाने में। तो मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, एक छोटा सा बात सुन लीजिए, सारंगी को सुविधा होगी कि मोदी गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड 19 आउट ऑफ 23 कांग्रेस स्कीम्स। हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट रीनेम्ड प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम रीनेम्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। निर्मल भारत अभियान रीनेम्ड एज स्वच्छ भारत अभियान। राजीव आवास योजना रीनेम्ड एज सरदार पटेल नेशनल अर्बन हाउसिंग मिशन। इंदिरा आवास योजना रीनेम्ड प्रधानमंत्री आवास योजना। राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना रीनेम्ड दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। स्वावलंबन योजना रीनेम्ड अटल पेंशन योजना। जन औषधि स्कीम रीनेम्ड प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम रीनेम्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान रीनेम्ड
as Digital India. National Skill Development Program renamed as Skill India. Direct Benefit Transfer for LPG renamed as Pahal. National Optic Fiber Network renamed as BharatNet. मैं कोई गलती तो ज्यादा बोल नहीं दिया ना भाई साहब। तो इसलिए हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ये सरकार एक नया किस्म के एक सिंड्रोम चालू कर दिया। दी सरकार हैज डेवलप्ड a new syndrome which may be called a political plagiarism. आप थोड़ा बोल दीजिए मैडम। नहीं, वो दोनों इतना ज्यादा बोल दिया ना, क्या करें? नहीं, आप बोलेंगे तो बाकी आपकी पार्टी के लोगों को मौका नहीं मिलेगा, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, बड़ा हो गया। मैडम, यूपीए जमाने में जीडीपी ग्रोथ रेट था न्यू मेथोडोलॉजी के तहत 8.1%, एनडीए में समाई घटकर 7.3% हो गया। एक्सपोर्ट कोलैप्सिंग हो रहे हैं अंडर एनडीए रेजिम। जी यूपी के जमाने में एक्सपोर्ट की दर था 25.43% ऑफ जीडीपी, ये घटकर अभी हो गया 19.05% ऑफ जीडीपी। ग्रॉस एनपीए कांग्रेस की जमाने में था 2.5 लाख करोड़, अभी वो बढ़ के हो गया 9.62 लाख करोड़। रिकवरी ऑफ रेट ऑफ बैड लोन्स कांग्रेस की जमाने में था 22%, अभी ये घटकर हो गया 9.8%। Rupee devaluation 14 fall in 10 years, here rupees 12 fall in 4 years. Gross fixed capital formation 34.1% of GDP during the UPA regime. It has been decreased 28.53% of GDP 2016-17. Excise duty on petrol कांग्रेस की जमाने में थे 9.48, आपकी जमाने में हो गया 90 रुपीज 48 पैसा। एक्साइज ड्यूटी ऑन डीजल कांग्रेस की जमाने में थे 3 रुपीज 56 पैसा, आपके जमाने में आके हो गए 15 रुपया 33 पैसा। जॉब क्रिएटेड हुआ हमारा सालाना 7 लाख, आपकी जमाने में 1.8 लाख। एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारे जमाने में हुआ 3.84%, एनडीए की जमाने में 1.86%। एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ रूरल वेज हमारे यूपीए की 2 के जमाने में हुआ 19.6%, अभी हो रहा है 9.44%। ग्रोथ ऑफ न्यूनतम सहायक मूल्य हमारे समय हुआ था 19.3%, आपका समय हो रहा है 3.6%। तो ये सारे बात तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। शायद मैं एक छोटा सा बात आप सबको सामने रखना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर है, गृह मंत्री जी है, एक बात बड़ा चिंता की विषय होता है। अभी जानते हैं आप यूएसए के साथ चाइना का ट्रेड वॉर चल रहे हैं, यूएसए के साथ ईरान का काफी संघर्ष की हालत हो रहे हैं। तो इसी समय आप क्यों चुप्पी साधे हैं? इसी बीच हमारा बहुत नुकसान हो रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट प्रोक्लेमेशन टर्मिनेटिंग द स्टेटस ऑफ इंडिया एज बेनिफिशियरी डेवलपिंग कंट्री स्पेशल ट्रेड स्टेटस विथ इफेक्ट फ्रॉम June 5, 2019 has grave trade and economic implication for India. It directly affects India's exports worth 54.4 billion. That means 3,80,800 crores. This special trade status was availed by India on November 24, 1975, when Indira Gandhi was Prime Minister, and has now been withdrawn after 44 years. Affects 16% of India's export. ये आपको बड़ी ध्यान से देखना चाहिए। हम जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ सारे दुनिया के सब लीडर की बड़ा अच्छा संपर्क है, ये देश को बचाने के लिए आपको देखना चाहिए। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की बात तो आप जानते हैं, 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 45 सालों में सबसे कम। इसके साथ साथ मैं दूसरा एक बात करते हैं, आप नेबरहुड पॉलिसी के बारे में यह जिक्र किया प्रेसिडेंशियल एड्रेस में। तो ये नेबरहुड पॉलिसी में क्या पाकिस्तान रहेगा? क्योंकि बात ये है कि we can change our friend, but we cannot change our neighbor. We can change our history, we cannot change our geography. It is up to you to decide what is to be done. लेकिन आपने बालाकोट में जो जिस तरीके की एयरस्ट्राइक किया, हम समर्थन करते हैं। साथ साथ एक बात कहूंगा, ये जो अभिनंदन वर्तमान है ना, उसका भारत श्री के पुरस्कार में नवाजा करो। और अभिनंदन जी का जो गोप है वो नेशनल माउस्टेस की हथियार से उसको नवाजा किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान इससे ज्यादा उत्साहित हो। और साथ साथ लास्ट, मैडम लास्ट, एकदम लास्ट, नहीं सुनना चाहते हैं? ये एनडीए की नया पहचान, ऊंची मकान लेकिन फीका पकवान। तो इसलिए मैं लास्ट अंतिम शब्द में ये कहना चाहते हैं, तो क्या आप 150th बात एनिवर्सरी गांधी जी को पालन करना चाहते हैं? अच्छा है,
लेकिन इसमें हमें प्रश्न है, एक सवाल है। एक तरफ आपके पार्टी के लोग हत्यारे गॉड्स की नारा लगाते हैं कि देश प्रेमिक है, दूसरी तरफ आप गांधी जी के 175 जन्म जयंती पालन करने जा रहे हैं। इसमें क्या आपका दो मुंह हम लोगों के सामने नहीं आते? 1937 और 8 में लास्ट रविन्द्रनाथ टैगोर गए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर यूरोप में गए थे, वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया। तो उस समय जर्मन में आइंस्टाइन को खदेड़ दिया गया, थॉमस मान नोबेल लॉरिएट सारे उनका पुस्तक को जला दिया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को बड़ा दुख हुई। आपने किसी दोस्तों को कहा कि मैंने यूरोप गया, इस तरीके के दृश्य देख के मैं परेशान हूं। तो उस समय एक दोस्त ने उनको एक चिट्ठी लिखा, उसमें लिखा था कि यू नीड नॉट टू बी एंग्विश्ड ओवर, एंड ही टोल्ड दैट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट द कोर्सेस ऑफ सिविलाइजेशन हैव नेवर बीन डिटरमाइंड बाय द ब्रूटल फोर्सेस। द कोर्सेस ऑफ सिविलाइजेशन हैव ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी। सो द रेड शर्ट ऑफ हिटलर एंड द ब्राउन शर्ट of Mussolini will not be able to determine the course of history. Only the course of history will be determined by a person who did not have any shirt, that is Mahatma Gandhi, who lives in India. So being a Indian where Mahatma Gandhi was once upon a time alive, I am proud of it. Thank you.